Hello everyone, this is our lecture 2 of the topic P block elements. हमने P block elements start किया था. We have discussed about the chemical properties of the P block elements, the properties of hydrides, their respective trends, the properties of halides and their trends, and the oxides and their trends. आज हम individual elements पढ़ते हैं and we start first with nitrogen. Nitrogen is abundantly present in the atmosphere, around 78% by volume. Nitrogen is freely available in the form of gas in the atmosphere. Nitrogen को और कहाँ से obtain किया जा सकता है? तो nitrogen can also be obtained from KNO3 and NaNO3. They are respectively called as child saltpeter and Indian saltpeter. KNO3 is called as Indian saltpeter. और NaNO3 को बोलते हैं चाइल्ड या चिली सॉल्ट पीटर. आप इससे भी नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हो. दिस इज द नेचुरल वे ऑफ ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन. पहला तो abundantly present है एटमॉस्फेयर में. दूसरा इट कैन इन द अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ KNO3 एंड NaNO3. सो ये आपको कहाँ मिलेगा? इन द अर्थ क्रस्ट. किस फॉर्म में मिलेगा? तो इंडियन सॉल्टपीटर या चिली सॉल्टपीटर के फॉर्म में आपको मिलेगा. दूसरा आपने न्यूक्लिक एसिड्स सुने होंगे. व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर DNA एंड RNA. जितना भी हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ DNA and it is stored in the body in the form of DNA and RNA. So nucleic acids are also composed of nitrogen. That is, they have nitrogenous bases in the form of purines and pyrimidines. या biomolecules chapter में detail में पढ़ेंगे कि DNA में कौन से nitrogenous bases present होते हैं, RNA में कौन से nitrogenous bases present होते हैं. Then you have nitro compounds. Nitrogen is also found in the form of these nitro compounds which are used in the manufacture of certain explosives. Same nitro compound हम कहाँ use करते हैं? In the manufacture of explosives. किस टाइप के explosives? तो आपने डायनामाइट सुना होगा. डायनामाइट is used for destroying big buildings. तो डायनामाइट जो होता है वो nitrogenous compound है. Trinitrotoluene is a nitrogenous compound. So you can obtain nitrogen from these nitro compounds also. तो नेचर में आप नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हो? तो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. उसका कितना परसेंट है? 78% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है. देन अर्थ क्रस्ट से आप इंडियन सॉल्टपीटर या चिली सॉल्टपीटर के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट. न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो नाइट्रोजनस रिच एंड नाइट्रो कंपाउंड्स के फॉर्म में जो आप एक्सप्लोजिव को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते हो. नाउ वी कम टू द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन. Lot many questions are asked from these preparation methods. अलग-अलग preparation methods हैं अलग-अलग compounds से. तो सबसे पहले हम first preparation method देखते हैं. The first preparation method is from ammonium nitrite. अमोनियम नाइट्राइट को आप कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट से. यू हैव अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आप उसको NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है NH4NO2 and NaCl. This is called as ammonium nitrite. Now on further heating ammonium nitrite, NH4NO2 on heating produces nitrogen and water.
This is the first method of preparation of nitrogen. The second method is from ammonium dichromate. आप अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं. You have heard about potassium dichromate, which is a strong oxidizing agent. Similarly, ammonium dichromate is also an oxidizing agent. अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, NH4 whole twice Cr2O7 on heating produces nitrogen, chromic oxide and water. तीन चीजें बनाता है, नाइट्रोजन, chromic oxide and water. So this is a good oxidizing agent. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IIT 1999 में. How will you prepare nitrogen from ammonium dichromate? तो ये सवाल पूछ चुका है 1999 के IIT में. आंसर था कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है. Then next method is third, from सोडियम अजाइड. इस कंपाउंड की एक मजेदार बात है कि इसको आप कहाँ यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. सोडियम अजाइड जो होता है ये कार बैग्स जो होते हैं, सेफ्टी बैग्स जो होते हैं, जो कार में लगाए जाते हैं so as to prevent any damage to the human body if your car meets an accident. उस केस में जो सेफ्टी बैग्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये सोडियम अजाइड प्रेजेंट होता है. खास बात क्या है सोडियम अजाइड की कि जब बहुत सिवियर एक्सप्लोजन होता है, कार जब हाई स्पीड पे जा रही होती है, इंजन हीट अप हो जाता है, तो हीट से ये सोडियम अजाइड डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बलून्स एकदम से ब्लो अप हो जाते हैं और कोई सिवियर इंजुरी ना हो, उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो सोडियम अजाइड इज NaN3. सोडियम अजाइड जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो इट अंडरगोज decomposition to form nitrogen and gives out sodium. कहाँ यूज हुआ? तो this is used in the airbags as a safety device. Last method of preparation. और कैसे बनाया जा सकता है नाइट्रोजन को? तो नाइट्रोजन को हम ब्लीचिंग पाउडर्स के साथ जब अमोनिया को ट्रीट करते हैं तो भी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. सो फ्रॉम अमोनिया NH3 की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ CaOCl2 के साथ जब आप इसे रिएक्ट कराते हो तो अमोनिया ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है इसको. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसके साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो अमोनिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर देता है नाइट्रोजन, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर. So these were the 4 preparation methods of nitrogen. किस किस से बनाया जा सकता है? अमोनियम नाइट्राइड को डिकम्पोज करके थर्मल डिकम्पोजिशन से, अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से, सोडियम अजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से, और अमोनिया की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो यू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस. नेक्स्ट, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पहले भी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं. हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. एक बार फिर से रिकैप कराती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. पहला, एबंडेंटली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मतलब ये रिलेटिवली इनर्ट गैस होगी, इसीलिए इतना एबंडेंटली प्रेजेंट है. इट डज नॉट रिएक्ट, सो इट इज रिलेटिवली inert, or you can say it is an unreactive gas. Discrete diatomic molecules के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में. इट हैज N ट्रिपल बॉन्ड N एंड इट शोज p-pi बॉन्डिंग. बाकी सारे एलिमेंट्स में p-pi बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते. दे ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स joined with covalent linkage to each other. नाइट्रोजन में p-pi ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नाइट्रोजन इज अ कलरलेस
and odorless gas. तो एक तो ये है कि ये रिलेटिवली इनर्ट है या अनरिएक्टिव गैस है, दूसरा ये कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, एंड इट इज आल्सो टेस्टलेस. और दिस इज डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक का मतलब इसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है नेचर में. So these were the different properties of nitrogen, chemical properties के रिस्पेक्ट में, और बाकी difference with the other elements जो था वो हमने last lecture में पढ़ा हुआ है. अब हम पढ़ते हैं anamorphous behavior of nitrogen, and then we would start with ammonia in our next lecture. So now the next topic is anamorphous behavior of nitrogen. एनामैलिस का मतलब होता है कि बाकी सबसे नाइट्रोजन अलग क्यों है. तो नाइट्रोजन बाकी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा है साइज में. नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन की. तो दूसरा रीजन डिफरेंस शो करने का कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. तो एक एक करके देखते हैं. तो नाइट्रोजन इज डिफरेंट from other elements of the same group as first, it is small in size. Second, it has high electronegativity. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसके पास, it has an unavailability of vacant d orbitals. ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ना होने की वजह से बहुत लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाती हैं इसकी. -3 तो ये शो करता है, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन में ये +5 तक अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड नहीं कर पाता क्योंकि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है. तो डी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के ना होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज होने की वजह से ये बाकी सारे एलिमेंट से डिफरेंस शो करता है. बाकी सारे एलिमेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं. और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है न्यूक्लियस से, एंड देयरफॉर इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन बाकी सबसे अलग एलिमेंट्स शो, अपनी प्रॉपर्टीज अलग शो करता है. अब क्या क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में, अब एक एक करके हम वो देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन इज अ गैस while others are solids. दूसरा, nitrogen has a triple bond and is diatomic. दो नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. एक रीजन ये है इसका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने का. while other elements are tetraatomic solids. And they exist as P4, AS4, SP4, Bi4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ऑल द 4 एटम्स आर bonded with each other through single bonds. Then N2 forms 5 oxide.
N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 के फॉर्म में ये 5 ऑक्साइड शो करता है, while other elements only form 2 types of oxides. They will either form a trioxide या फिर वो पेंटा ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से +1 से लेकर +5 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। इसकी वजह से ये अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो बाकी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हाइड्राइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NH3, it forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, या they do not form इंटर या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाकी और लास्ट है हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 इज स्टेबल, रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स आर unstable. ये है difference of nitrogen with the other elements of the group, other compounds of the elements of the 15th group, जो नाइट्रोजन को बाकी सबसे अलग रखता है। उसके रीजन है ये 4 जो अभी हमने पढ़े, कि तो उसका स्मॉल साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से, जो डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी एक रीजन है प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करने का, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज which point या which property of nitrogen makes it different from the others। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। and the points of differences theoretical question है, anomalous behavior of nitrogen के फॉर्म में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ ऑब्टेन होता है, नाइट्रोजन की क्या प्रिपरेशन मेथड्स है, और नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज योर सेकेंड लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर अमोनिया, its preparations and its properties in the coming lecture. So that is all for today. Thank you so much.